Hey, what's up everyone? Praful here. Welcome back to another episode of the 915 Daily. Today is Tuesday, 3rd of Feb, and today's Nifty expiry was a bonanza kind of an expiry for the expiry traders, but it was a black swan event for the positional option writers. Generally, whenever one talks about the black swan events, most of the people think about the markets gapping down, lower circuits, flash crash, some negative events, but today the markets proved that the black swan events can occur even on the upside as well. Markets today opened with a record shattering 1200 points gap up. कल हम 2500 के आसपास क्लोज हुए थे. आज 26300 के आसपास मार्केट्स खुला, ऑलमोस्ट 5% गैप अप, विच इज प्रोबेबली वन ऑफ द हाईएस्ट. एंड कल स्ट्रैडल्स 180 पे क्लोज हुआ था. एंड टुडे ऑन द एक्सपायरी डे वी गॉट द स्ट्रैडल्स एट 440 rupees. So most of the traders who could capitalize on this would have made bonkers amount of money. But at the same time, you're gonna hear a lot of stories from the loss-making traders who usually have this habit of shorting penny call options, thinking that the markets will not run up this much. For them, this was a lesson for the lifetime. But in spite of markets opening such a big gap up, I think the markets were kind enough even for those kinds of reckless option writers. Because जितना भी उन्होंने आज लॉस बुक किए होंगे, मेरे हिसाब से काफी सस्ते में उन्होंने छूटे होंगे. Because if you look at the chart, the markets did gap up at 26,300, but within the first minute, the markets almost fell almost 400, 500 points, and the calls did not spike as much. Imagine if the markets had hovered around 26,300 even for 10 or 15 minutes, जो भी call writers ने loss आज book किए हैं, उसका 4x or even 5x loss book करना पड़ता था. And the markets have been relatively kind to all these reckless positional writers who don't risk manage and who don't manage their position size. Because a few months back, when the markets gapped down massively because of Trump's tariffs, the synthetic future was trading significantly higher than spot, and even then, जो भी लोग puts में loss book किए हैं, in my opinion, वो भी सस्ता छूटे. The markets have spared these positional option traders twice now, so if you don't take a lesson from here, probably third time would be the charm, and probably won't be there to trade the fourth time. So today was a spectacular day, and for me, since I don't have any positional exposure, I got decent premiums, but at the same time, I was very cautious because first minute में ही 26,300 से 25,800 तक markets आ गया था. So I was not sure whether the market's going to go sideways or the market's going to tank or market's going to come back to 26,300 levels. So I sized my positions lower. Of course, even with a smaller size, I closed 1% up, which is more than sufficient for me for the kind of risks that I'm taking. But people who did capitalize on that initial IV spike, they would have made a killing today. So let's get to the terminal and let's see how to play tomorrow's Sensex expiry, because जो भी technicals था, जो भी हमारे calculations था, सब उल्टा हो चुका है because the markets have gapped up massively. Almost 5% का gap up के साथ markets open हुआ है. But throughout the day, the markets went sideways. Almost 25,800 के आसपास markets ने एक sideways range में रहा, and the option writers, even without having to make a single adjustments, they would have taken home the entire premium crush today. So ऐसे expiries हमको 2020 and 2021 में मिलते थे. 2022 के बाद we never got these kinds of linear decay kind of an expiries where the realized volatility is much lower than the implied volatilities, and it was some sort of an option writer's paradise. So after a long time, option writers had their day, but at the same time, option writers who shorted positionally, they also got the lesson of their lifetime. So let's get to the terminal and let's see क्या scenario बन सकता है, क्या trade opportunities बन सकता है. All right, just a few weeks back, we were looking at this range and हम ऑलमोस्ट फ्रस्ट्रेट हो चुके थे कि मार्केट्स इस रेंज को क्यों नहीं तोड़ रहा है. सो ऑलमोस्ट 3 महीना इस रेंज में मार्केट ने बिताया, ऑलमोस्ट एक 300-400 पॉइंट के छोटे रेंज में. बट देन द मार्केट्स ऑलमोस्ट मेड अ मूव ऑफ 1,700, 1,800 points in less than 3 sessions. That's how the markets move. And whenever the markets are prone to the news फ्लो जब भी रहता है तो कोई प्राइस एक्शन काम करने वाला नहीं है. सो दैट्स व्हाई व्हेनेवर वी आर ट्रेडिंग पोजिशनल, हमारा पहला जो इंपॉर्टेंट चीज जो होता है वो पोजीशन साइजिंग की होती है, एक्सपोजर मैनेजमेंट की होती है. एंड अ लॉट ऑफ पीपल हैव दिस टेंडेंसी टू से दैट ओ ब्लैक स्वन तो सिर्फ कॉल्स पुट साइड होता है, रिस्क होता है मार्केट क्रैश होने का, फ्लैश क्रैश का रिस्क होता है, गैप डाउन का रिस्क होता है, लोअर सर्किट का रिस्क होता है. बट टुडे द मार्केट्स प्रूव्ड दैट ब्लैक स्वन अपर साइड भी हो सकता है. नाउ द मार्केट्स गैप्ड अप ऑलमोस्ट 1,300 पॉइंट्स के आसपास मार्केट्स ने गैप अप दिखाया. बट विद इन द फर्स्ट 1 minute, let me go to the 1 minute chart. You can see that within the first minute itself the markets dropped almost 500 points. So ये जो 500 points का जो market drop किया है ना, so that would have saved a lot of people's careers today. Because अगर market is
26,300 के आसपास होवर करता 5 मिनट, एटलीस्ट 5 मिनट भी होवर करता, तो देन दैट वुड हैव लेड टू फर्दर शॉर्ट कवरिंग रैली बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल वुड हैव बीन स्टक. बट अगेन दिस वुड हैव ऑल्सो गिवन अ लॉट ऑफ डेंट टू लॉट ऑफ दीज कॉल राइटर्स, बट आई थिंक they would live to survive another day. But अगर मार्केट गलती से 26,300 के आसपास एक 5 या 10 मिनट भी होवर कर लेता तो वो लोगों का ऑलमोस्ट 15, 20, 30% का भी लॉसेस हुए रहेंगे. एंड यस, बट टुडे the expiry traders would have minted the money at the expense of the positional traders, and this is a cat and mouse game, right? तो जब भी positional traders यहाँ पे फंस जाता है तो their exits would suddenly trigger some IV spike, some premium spike, and intraday traders would come and use that. So basically जब भी मैं बोलता हूँ कि जब straddle कम रहता है, wait for the markets and then wait for the algo traders to get stuck and उनका liquidity को हम use करके enter करेंगे. So this is a cat and mouse game. So this is the living example of how game theory works, right? So इंट्राडे में ज्यादा कुछ बात करने को है नहीं बिकॉज द मार्केट्स वेंट कंप्लीटली साइडवेज, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट के रेंज में रहा वाइल द स्ट्रैडल्स ओपन एट 440 रुपीज. आप आंख बेच के कोई भी ऑप्शन शॉर्ट किए होते तो आपका पैसा बन गया होता. तो इफ यू हैड मेड मनी टुडे, डोंट पैट योरसेल्फ ऑन द बैक बिकॉज टुडे मार्केट की देन है जो भी पैसा बना है, एंड मैंने भी जो पैसे बना है दैट इज ऑल्सो मार्केट्स का देन. ऑफ कोर्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे, यस, इफ यू ट्रेड शॉर्ट गामा तो यहाँ पे थोड़ा आपका स्किल्स को टेस्ट किया होगा बिकॉज पहले कॉल्स बढ़ गया, देन पुट्स बढ़ गया, देन अगेन कॉल्स बढ़ गया. बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट वॉज अ ऑप्शन राइटर्स ड्रीम काइंड ऑफ अ डे. सो स्ट्रैडल की बात करें, you can notice that yesterday the straddles closed at 180, and because the markets opened 1,200 points gap up, the straddles opened at 440. Of course ये 440 का straddle काफी लोगों को मिला नहीं होगा because most of the brokers काफी लैगी हो जाते हैं पहले 30-40 seconds के आसपास, 30-40 seconds के टाइम पे, and by the time you could enter the trades probably would have gotten 350. 350 is what I'd consider the fair executable and actionable price for straddles today. So even if you consider 350, that would have also given a decent kind of a crush because markets ने 150 points से 200 points के range में पूरा दिन रहा, and whatever options you would have sold, you would have easily made money today. So today was some sort of a dream kind of a day for the option writers. But again, I did not make much. I closed 1% in green, but the kind of risks I was willing to take, I think I've been compensated handsomely. So ओपन इंटरेस्ट की बात करना वगैरह वगैरह, दैट डजंट मेक सेंस. टुमारो वी हैव सेंसेक्स 1DT, तो देखते हैं सेंसेक्स 1DT कैसे प्राइस इन कर रहा है बिकॉज वी हैव अराउंड 870. आज सेंसेक्स का भी स्ट्रैडल 2100 के आसपास स्ट्रैडल खुला था, एंड वी सॉ अ डिसेंट क्रश ऑन एन इंट्राडे बेसिस, एंड 870 के आसपास सेंसेक्स क्लोज दे रहा है. एंड कंसिडरिंग द फैक्ट दैट मार्केट्स आज इतना बड़ा गैप अप होने के बाद भी ज्यादा इंट्राडे में मूव नहीं किया है, सो इट मीन्स दैट द मार्केट हैज एक्सेप्टेड दिस प्राइस रेंज. जनरली मार्केट्स मान लो कि बिकॉज ऑफ सम सॉर्ट ऑफ अ न्यूज और सम सॉर्ट ऑफ एन इनएफिशिएंसी, अगर मार्केट गलती से कुछ दूसरा प्राइस पे अगर खुलता है तो मार्केट हैज टू एक्सेप्ट दैट प्राइस. मार्केट वहां पे प्राइस को एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए. मार्केट्स ये जो ओपन हुआ उस प्राइस को एक्सेप्ट नहीं किया. 26,300 पे जो निफ्टी ओपन हुआ उस प्राइस को एक्सेप्ट नहीं किया बिकॉज इट वाज, मार्केट्स फेल्ट दैट इट वाज टू मच. सो मार्केट्स ने 25,800 के आसपास प्राइस को एक्सेप्ट कर चुका है, एंड दिस इज अ वेरी नैरो रेंज. तो कल के लिए मोस्ट प्रॉब्ली वी शुड बी ट्रेडिंग सम सॉर्ट ऑफ अ ब्रेकआउट ऑफ दिस रेंज. तो जनरली कल ऑप्शन प्रीमियम्स ठीक है, बट एट द सेम टाइम कंसिडरिंग द फैक्ट दैट वी आर जस्ट आउट ऑफ द बजट एंड वी हैव बीन कंटिन्यूअसली प्रोन टू द न्यूज, सो आई विल नॉट बी कंसिडरिंग एनी प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड्स टुमारो. मेरा एक ही प्राइस एक्शन ट्रेड होने वाला है, दैट इज अगर कल मार्केट्स इस लो को अगर तोड़ता है तो यहां पे एक छोटा सा एक ब्रेकडाउन ट्रेड्स में इनिशिएट करूंगा. डोंट वेट फॉर द रीटेस्ट, बट ब्रेकडाउन ट्रेड ही आप इनिशिएट करो. थोड़ा हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है, बट एट द सेम टाइम यू वुड हैव मेड अ डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी टुडे. तो थोड़ा आज जो भी प्रॉफिट बना है उसका 15-20% आप यहाँ पे आप स्टेक करके आप यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड कर सकते हैं अगर मार्केट इस लो को तोड़ता है. बट अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके इस हाई को तोड़ता है, दैट इज 20 ऑन सेंसेक्स टर्म्स पे बात करें तो 84,200 लेवल्स को अगर ब्रेक करता है देन यू कैन गो लॉन्ग एज वेल, बिकॉज मार्केट्स ने पूरा दिन इस रेंज को एक्सेप्ट किया है. यहाँ पे बहुत
बहुत ज़्यादा हैंड्स एक्सचेंज हो चुका है, ट्रेड्स काफ़ी ज़्यादा हो चुका है. तो फॉर मी दिस रेंज इज विल बी फेयर प्राइस रेंज फॉर सम टाइम नाउ. सो इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को हमको ट्रेड करना पड़ेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट टुमारो आई विल नॉट ट्राई टू शॉर्ट द वॉल्स बिकॉज आज काफ़ी अच्छा वॉल क्रश मिला होगा, तो ऑप्शन राइटर्स को काफ़ी अच्छा पैसे मिला होगा, तो दैट वुड काइंड ऑफ गिव देम सम सेंस ऑफ विक्ट्री एंड वो लोग थोड़ा कल कॉम्प्लेसेंट होने वाला है एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट कल मार्केट्स उन लोगों को थोड़ा फिर से ट्रैप कर सकता है. सो टुमारो इवन दो लाइक आई हैव मेड मनी, आई हैव गॉट लाइक अ डिसेंट कुशन फॉर February, I will not jump in and I will not try to short the premiums, but rather I will try to take the ब्रेकआउट और द ब्रेकडाउन ट्रेड्स. उसके अलावा कुछ ज़्यादा कुछ प्लान नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा स्पेस है. तो अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन खुल जाता है देन लेट द डे गो बिकॉज मार्केट्स ने यहाँ पे बिकॉज ऑफ अ रीजन द मार्केट्स गैप्ड अप एंड बिकॉज ऑफ अ रीजन द मार्केट्स एक्सेप्टेड दिस प्राइस बैंड एंड इट ट्रेडेड द एंटायर डे. बट अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है देन अगेन सम सॉर्ट ऑफ अ न्यूज हैज बीन इन्फ्लुएंस्ड और द मार्केट्स वुड हैव रीप्राइज्ड और द मार्केट्स वुड हैव करेक्टेड इटसेल्फ सेइंग दैट ओ मैंने जितना रिएक्ट किया है इस न्यूज़ को लेके आई थिंक दैट वाज सम सॉर्ट ऑफ एन ओवर रिएक्शन. सो लेट द मार्केट्स डिसाइड. अगर मार्केट इस रेंज के अंदर ओपन होके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है, trade the price action breakouts or the breakdowns, of course with strict stop losses, and don't risk more than 20% of what you have made today. आज मान लो कि 2 लाख रुपए बना है तो only risk 40,000 rupees tomorrow and no re-entries tomorrow. अगर एक बड़ा गैप अप खुल जाता है, that is if Nifty opens above 26,000 levels, then also you let the day pass. If Nifty or Sensex both open below today's low, इसके नीचे खुल जाता है then also you let the day pass because markets अगर यहाँ पे इस बड़ा गैप पे अगर खुल जाता है तो then markets के पास काफ़ी ज़्यादा स्पेस हो सकता है and the markets will trap people left, right and center and there is no point in trading in this खाली जगह. खाली मैदान पे ट्रेड करना नहीं चाहिए हमें. बट अगर मार्केट्स गैप डाउन खुल के यहाँ पे एक पुल बैक देता है यहाँ पे 83,500 लेवल्स पे, यहाँ पे अगेन विथ अ स्मॉल स्टॉप लॉस विथ अ स्मॉल साइज आप एक शॉर्ट ट्रेड एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. मैं ये नहीं बोलूंगा कि 100% काम करने वाला है बट यहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अपार्ट फ्रॉम मार्केट्स ओपनिंग विद इन दिस रेंज एंड गिविंग अ ब्रेकआउट और अ ब्रेकडाउन, कल मेरे लिए इट विल बी अ नो ट्रेडिंग डे. जितना भी अगर बड़ा गैप डाउन या गैप अप खुलता है आई लेट द डे पास. आई विल नॉट ट्राई टू छेड़ना नहीं चाहता हूँ मार्केट्स को बिकॉज अगर कल या परसों एक दो दिन मतलब मार्केट्स ट्रेड कर देगा ना देन विल स्टार्ट गेटिंग विच रेंज द मार्केट्स आर क्लियरली एक्सेप्टिंग. मान लो कि मार्केट्स कल गैप अप खुल के यहाँ पे हॉल्ट कर देगा देन हमारे लिए ये एक अच्छा बेस बन जाता है हमारा ट्रेड्स को प्लान करने के लिए. अगर मार्केट गैप डाउन खुल के यहाँ पे ट्रेड करना चालू कर देगा देन वी कैन अज्यूम दैट दिस विल बिकम सम सॉर्ट ऑफ अ लोकल टॉप फॉर द नेक्स्ट 3 or 4 days. सो लेट द मार्केट्स डिसाइड कहाँ पे ट्रेड करना चाहिए, कहाँ पे फेयर वैल्यूज को एक्सेप्ट करना चाहिए. उसके बाद हम आके विल कम अप विद आवर प्राइस एक्शन थ्योरीज. बट यहाँ पे मार्केट्स आर reacting or in fact overreacting to all sorts of news. So जो भी अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडर्स हो, प्राइस फॉलो करके आप ट्रेड करते हो, it is better to avoid the markets or even if you want to experiment, trade with 15 to 20% size. Alright, I hope you guys didn't get stuck positionally and अगर आप positionally stuck नहीं होंगे तो then intraday में काफ़ी अच्छे पैसे बनाए होंगे if you're an option writer. So let me know in the comments आपका expiry कैसा रहा. For me personally, I closed around 1% up. 1% से थोड़ा ज़्यादा ही close किया हूँ but I'd consider 1% up. Alright, I'll see you again after tomorrow's market action. Till then, take care. Bye bye.